increasingly getting accustomed to this as a safer and a more convenient format of attending and conducting the roadshow. We hope you gather the same or a better experience from the comfort of your home or office. Before I review the functionality of the webinar, I would like to bring to light that Exaro Tiles commenced its business as a partnership firm in 2007-8 as a manufacturer of frit, a raw material used in manufacturing of tiles. Over the years, the company has diversified, extended, and evolved into a manufacturer of vitrified tiles, majorly for flooring solutions. As on date, they have over 1,000 designs in their product basket, which are marketed under the brand Exaro. With more than 2,000 registered dealers, they supply products for large infrastructure related projects, including residential, commercial, educational institutions, hotels, hospitals, government, religious institutions, builders, developers, etc. Moving ahead, you will be kept on mute throughout the event and all questions will be answered via the Q&A chat box only, where you can type your question in the session or at the end of the webinar. Would request all participants to please limit yourself to 3 questions if possible, and also use a lowercase font when typing the question. If we miss answering any of your questions, please do not worry. You can email us at ipoteam@conceptpr.com and we will try to be swift in responding back to you. Going forward, it gives me great pleasure to introduce our speakers from the company. We have Mr. Mukesh Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Kirit Patel, Full-Time Director, Mr. Himanshu Shah, Chief Financial Officer. The representation from the book running lead manager is Mr. Mahavir Lunawat, founder, Pantomat Advisory Services Group. On behalf of the company and lead managers to the issue, let me thank all the participants for being a part of this session. And now I would like to invite Mr. Mahavir Lunawat from Pantomat to deliver the opening remarks and commence this brokers and analyst meet. Over to you, sir. Thank you very much, Sanjay, and very good afternoon to one and all. Thanks for assembling at a very short notice. And indeed, pleased to know the overwhelming, assembly. Basically, Exaro Tiles IPO is opening on 4th of August and closing on 6th. And I'm sure all of us are tracking building construction and ceramic industry, and you would know probably that this is the first IPO in last 1 decade which is coming out of ceramics industry. So all of us are looking forward as analysts, this new brand, new management, new company to the market. Very quickly, I think over last couple of years, ceramics industry has given highest returns, while much of the attention has been, drawn to pharma chemical space. But those of you who have, looked at the numbers probably will agree that ceramics has given probably more return than even those industries in last 2 years. And why not? Because of a lot of macro and micro factors. Globally, I think Indian products are in great demand. And I'm very glad to share that India has conquered the second position in exports, global exports. Earlier, it was a third slot. Now, beating Spain, India has occupied the second. And in production as well, India is at second position. So both in exports and production, India is second, and it produces more than 10% of global output. I think this is a showcase industry, I would say, in terms of the clustered approach, which has been able to build scale, which has been able to compete with larger economies like China in terms of cost, as well as coming out with good quality, if not superior. So in that context, I think globally, particularly during COVID, because of the anti-dumping duties on Chinese products and various such factors, US, Europe, and other larger economies have developed great amount of interest in Indian ceramic products. There are a lot of foreign corporations who have, either who have already come to India during last 2 years or who are probably in advanced stage of
exploring the Indian partners. We completed, the acquisition by Caesarstone, which is a Nasdaq listed company of a company based out of Morbi, Gujarat. So, like that, I think there are a lot of private equity M&A transactions which are happening. And in this listed space, of course, there are Kajaria, Somani, and to some extent Serra in the larger pack. And then we have Asian Granito, Orient Bell in the mid-range segment in terms of size. So this is an industry of close to 50,000 crores, growing at a very steady rate, and of course with great demand globally. Domestically also, in terms of data points released by Chamber of Commerce and Industry of India, at least 43,000 houses has to be built every day. 43,000 houses every day if we have to achieve the housing for all vision of the government of India in next 2 to 3 years. So that's the kind of demand we are talking. And that besides, the smart cities and other infrastructure development, I think the entire construction material industry, including ceramics and tile industry, I think we are getting into a golden wave as far as this industry space is concerned. And in terms of the product trends, I think GBT is one of the segment which is growing most, and incidentally, Exaro is in that product segment. Besides, large slabs is another product segment which is gaining momentum. So that is very quickly on the product segments. Those of us who have particular inclination to know about the product trends. Coming to Exaro, I think Exaro is one of those integrated players in India who has right from their own manufacturing to own brand to large retail network, and that I think enables Exaro to have margins of the kind they have, and that too consistently over last 7-8 years in the range of 18 to 20% EBITDA margin. And that gives a lot of confidence in terms of Exaro as a platform. And notably, unlike some other peers, Exaro has its own retail sales. So 75% sales is through retail distribution network, and that I think enables Exaro to have the brand building done very effectively across the Indian market, and fairly well distributed in terms of geographies, whether it is southern market, western market, and of course they have their presence growing also in north and east. IPO size is of 160 crores for 30% dilution at a pre-money valuation of 400 crores at the upper price band of 120 rupees, and post IPO 537 crores in precise terms. That's the kind of numbers we have. And of course it's going to be listed on both NSE, BSE main bourses. So that's broadly the details about the IPO. The utilization of IPO proceeds is going to be for long-term loan repayment to the extent of 50 crores, and balance will be towards working capital. So out of 160 crores, 135 crore is fresh equity, and approximately 26 crores is towards offer for sale. So that's about broadly the breakup of the IPO and utilization. And after that, loan repayment, company will be completely long-term loan debt free, and it will have debt equity of less than 0.3 in terms of the expanded equity base. So I will probably take a pause here. We'll definitely get into more details, but I'm sure all of you will be excited to hear more from Mukesh Bhai, Kirit Bhai, and Himanshu Bhai, who has joined from the company management side. Mukesh Bhai is the managing director of the company. Kirit Bhai is the other co-promoter and director. Himanshu Bhai is the CFO of the company. He was earlier CFO of Asian Granito for a good amount of 14-15 years. Couple of months back, he joined Exaro, and he brings with him a lot of experience of industry and financial management. So with this, I must thank the entire concept team for putting it together. This wonderful assembly of all the analysts, friends, investor friends, and I'm sure it will be a very enriching discussion for all of us.
Thank you once again, all of you, and over to the organizers. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Lanawat, for the detailed introduction on Exarotile's initial public offering and issues key highlights. Before we get a hearing from the management and the leadership team, I would request the moderator to please play the company's corporate audio visual. Welcome to Exaro Tiles, India's ultra-modern state-of-the-art vitrified tiles manufacturing company, situated at rapidly growing and industrially developed state, Gujarat. Exaro currently has two modern facilities, each situated at Vadodara and Himmatnagar. With a combined capacity of 132 lakh square meter per annum, our Himmatnagar facility is one of India's single largest facility for manufacturing of GVT under one roof. Our facilities, which are dedicated for manufacturing double charge and glaze vitrified tiles, are multi-purpose facilities that allows flexibility to manufacture various sizes and designs. The facilities are integrated from sourcing to production output, which are done completely in-house, and products are sold under our own brand, Exaro. Our facilities houses advanced machineries and technologies which are imported from leading suppliers from across countries, enabling us to provide quality and latest design products to our 2,000 plus retail touchpoints across India and customers across multiple countries. The raw materials are checked at labs to ensure quality and then moved to large capacity warehouse where different types of raw materials are stored. The next step is to mix and grind the raw material with water in a ball mill and convert the raw material to slurry. Our ultra-modern 6-ball mills, each having a capacity of 60 tons with advanced technologies, can generate larger batch sizes. The slurry is then transferred to 20 huge slurry tanks, each having a capacity of 250 tons, where pigments are added to slurry. The iron particles and excess water are then removed with the help of magnetic machine and via spray drying respectively. Our world-class 2 spray dryers has spraying capacity of more than 1,000 tons of material per day. The entire production process is automated. Our multiple 54 silo storage units, each with a capacity of 65 tons, can store the raw material for a month for uninterrupted production. For the GVT tiles, the powder is directly transferred from silos to the hydraulic press. Exaro is proud to be the first in India to have 5 HLT press, each having a pressing capacity of 5,600 tons installed under one roof. To give a top-notch finish to every masterpiece, moisture is removed from the tiles with our 5-layered horizontal dryers. For the GVT tiles, glazing and screening are most important part of the tile manufacturing process. Our advanced glazing line provides aesthetic beauty, water reference durability, and hygienic quality to tiles to produce quality products. Tiles arrive at printing stage, where latest designs are printed on the tile by 2 advanced printing machines. Then tiles are transferred to kiln, where they are heated at 1200 plus Celsius temperature. Our 243 meters longest Secmi kiln is installed at facility. At Exaro, we have 2 polishing line and each have 64 head imported Keda polishing machines that give an amazing texture and finish to our products. Exaro plant is one of its kind in India with 4 layers narrow micro polish machine, which helps us by giving 90% glossier finish to the texture along with additional strength and durability that can last for generations. Exaro has an in-house laboratory and R&D facility. At Exaro, we have set international quality standards, where every batch goes under stringent quality check at every step, starting from raw material.
The finished product is then transferred to quality control planometer to automatically check the rectangularity, thickness, and bending values of the tile. After a rigorous 5-grade sorting, a grade-wise packaging of the tiles are done in the packaging department. The packed box is marked and sorted with all the specifications of the tiles and dispatched through 15 different dispatch points for faster and easy dispatch to the wide network of Exaro Tile and end customers. This is the world of Exaro, where energy, innovation, passion, and dedication meet at one place and provide world-class products and services. Exaro Tiles, passion for innovation. Thank you. I would now request the company team to take us through the organization's journey, struggles, and victories, and subsequently take the attendee over its business and financial details, as well as touch upon its key strategies going forward. Thank you, and over to you, sirs. Thank you, Sanjay. गुड आफ्टरनून फ्रेंड, शॉर्ट टाइम में आप ज्वाइन हुए हो, इसके लिए मैं और एक्सारो परिवार की तरफ से बहुत आभारी हूं। अभी जो बात हुई, वीडियो भी देखा, तो अभी जो जर्नी की एक्सारो की स्टार्ट करे, तो उससे पहले जो मेरी जर्नी रही है कि भाई मैंने एजुकेशन खत्म किया, उसके बाद मैंने टाइल्स का ट्रेडिंग किया है। उस टाइम छोटी 6x6 की टाइल्स आती थी, तो बिल्डिंग मटेरियल का मैंने ट्रेडिंग किया। उसके बाद टाइल्स कंपनी में जॉब किया हुआ है। जो जहां मैं जॉब करता था वहां अपने प्रमोटर दिनेश भाई पटेल करके थे, तो वहीं थे। सो किरीट भाई अपने जो अनदर प्रमोटर्स है, वो सूरत में उनका टाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज था, तो वहीं हम मिलते थे और सोचते थे कि भाई आगे बढ़ना है तो टाइल्स में कैसे बढ़ सकते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट है जिसमें हमको ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। तो सोचते थे ऐसे ऐसे करके क्या कर सकते हैं आगे। फिर वहीं से मेरा एक फैमिली का छोटा बिजनेस था हमारा, कि भाई बेसिकली सिरामिक रो मटेरियल का था, उसको जिरकोनियम सिलिकेट बोलते थे। तो मैं बहुत सारी कंपनी में सप्लाई करता था। सो वहां भी हमारा 1 to 1 हम वहीं सर्च करते थे, भाई टाइल्स इंडस्ट्री में जाना है तो क्या हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेजर पार्ट था फ्यूल। तो फ्यूल के लिए हमने सोचा कुछ करते हैं, क्योंकि हम भी नए थे टाइल्स इंडस्ट्री के लिए। सो ये कंपनी फिर मैंने 2008 में इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद मैंने जो ONGC का जो गैस है वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। जो ONGC का जो गैस रहता है वो APM प्राइस पे 9 से 10 रुपीज के बीच में रहता है, और जो अनदर अपना जो गुजरात में जो है साबरमती और गुजरात गैस, वो 36 to 40 रुपीज के बीच में एवरेज इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से रहता है। सो हमने सोचा कि भाई अभी ये जो हमको मान लो कि ONGC का गैस मिलता है, तो वो हमारे लिए एक कॉस्टिंग वाइज भी इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। सो हमने अप्लाई किया ONGC में, और उसके बाद हमको 2010-11 में बड़ौदा पादरा के पास हमको गैस अलॉटमेंट हुआ। वो उनके जो नॉर्म्स के हिसाब से रहता है कि जहां से वो लोग वेल में से जो अपने को सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो ONGC का जो क्रूड निकलता है, इसका बाय प्रोडक्ट लो प्रेशर वाला गैस रहता है। सो उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो उसके नजदीक में आपको लैंड लेनी पड़ती है। तो लैंड लेने के बाद हमने सोचा कि चलो अभी उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टार्ट किया। दूसरी साइड ये सोचा कि कौन सी प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में कि अपना भी नाम हो, कंपनी का भी एक अच्छा ब्रांड हो, और अच्छी तरह से हम आगे बढ़ सके। सो ये सब एनालिसिस करते थे, तो पता चला कि भाई जो चाइना से 800 का साइज का डबल चार्ट टाइल्स जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, और 100% यानी कि इंपोर्ट होता था, इंडिया में कोई प्लांट था नहीं। तो हमने सोचा इसी प्रोडक्ट में जाते हैं, लेकिन स्ट्रगल वही था कि भाई इंडिया में हम नए हैं, हमारा मैनेजमेंट भी नया है, पहला प्लांट है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन सोचा कि भाई इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आगे इसमें ही बढ़ेंगे। तो फिर फाइनल हुआ कि हम डबल चार्ट टाइल्स में इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें डबल चार्ट टाइल्स में हम आगे बढ़े, और एक अच्छा प्रोडक्ट लेने का दिमाग में था। तो चाइना में वहां गए और वहां से विजिट वगैरह किया कि भाई चाइना का कौन सा प्रोडक्ट चाइना में इंडिया में आ रहा है। तो वो एनालिसिस किया, फिर उसके सामने एक अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया।
और दूसरा कि चाइना का जो मटेरियल इंडिया में आ रहा था वो कॉस्टिंग वाइज भी हमने मैच किया, उससे कम रेट में हम यहाँ मार्केट को दे सके, तो एक ऐसा हमने R&D करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। सो उसके बाद क्या था कि भाई जितने भी दूसरे अपने एंटिटीज है टाइल्स इंडस्ट्री में, उन्होंने कहा कि भाई आप ये इंडस्ट्री में नए हो, आप कहाँ मार्केटिंग करोगे, ये करोगे, उससे अच्छा है कि ये आप प्रोडक्ट हमको दे दो क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारा मैनेजमेंट का विजन यही था कि एक बार मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, सो हमारे इंडिया में कहीं नाम नहीं रहेगा, एक्सारो नाम ब्रांड नहीं रहेगी, फ्यूचर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फाइनली यही हुआ कि हम खुद की ब्रांड करेंगे और खुद ही आगे बढ़ेंगे। सो अपना किरीट भाई का जो लार्ज एक्सपीरियंस था 7 साल का टाइल्स में डिस्ट्रीब्यूशन का सूरत में, तो उनको पता था कि भाई डीलर्स को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने 1-to-1 हर एक जोन में प्रोफेशनल टीम हायर किया, GM VP लेवल, और पूरी हायर की, उन्होंने हायर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके करते गए। और जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है वहां हमने जो कि लॉन्चिंग किया, एग्जीबिशन किया, आर्किटेक्ट मीट किया, मैशन मीट किया, और उस हिसाब से आगे बढ़ते डीलर्स को शॉप ही बना के दी, और उनको भी बताया कि भाई ये चाइना का प्रोडक्ट है, उसके सामने एक्सारो का प्रोडक्ट ये है, उसमें आपका बेनिफिट ये है कि भाई आपको चाइना से जो इंपोर्ट करना होता है वो पूरा बल्कि करना पड़ता है, यहाँ से आपको आज ऑर्डर देते हो तो विद इन 10 to 15 डेज में इजीली डिलीवरी मिल जाती है। तो वैसे करके हम बड़े, प्रोडक्ट अच्छा था। फिर बात आई कि भाई डीलर्स को यहाँ जो शॉपी बनाई थी, तो उनका रिक्वायरमेंट है भाई अभी ऑलरेडी एक्सपेंस हो गया, दूसरा एक अच्छा प्रोडक्ट आप दो। तो हमारा फिर बाद में हमने सोचा कि चलो एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। सो उसके बाद हमने 2015 क्योंकि आज की डेट में जो हाईग्लोस प्रोडक्ट है, दूसरे जो प्लेयर्स है वो 2 से लेके 10%, 15% तक मार्केट में वो शेयर करते हैं और वो खुद उतना प्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरा, इंडिया एक्सारो अकेला प्लांट ऐसा था कि 100% हम हाईग्लोस बनाना चाहते थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ग्लेज है, जो मेन कंपोनेंट है GVT के लिए, तो हमने खुद डेवलप किया और हम इन हाउस खुद बनाने लगे, और उसी से हिसाब से हमने हाईग्लोस प्रोडक्ट 100% पूरा हाईग्लोस प्रोडक्ट हम बनाते हैं और आज ऑल ओवर इंडिया में हम सर्व करते हैं। तो उस हिसाब से अपना मार्केट हुआ। आपने देखा कि अभी मार्केटिंग पूरी स्ट्रेटेजी रेडी है। आज की डेट में मेरे ऑल ओवर इंडिया में देखे तो 2000 अपने टच पॉइंट है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल नेटवर्क के साथ। सो उस हिसाब से अपना स्पान हुआ है, जो अभी मैंने बताया उस हिसाब से अपने ये स्लाइड में देखेंगे तो एक्सारो के पास आज की डेट में 2 यूनिट्स है। यूनिट 1 यानी बड़ौदा में है, और जो यूनिट 2 अपना बड़ौदा में है, यूनिट 2 अपना तलोद में है, जो सेपरेटली दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है। जो बड़ौदा वाला प्लांट है प्योरली डबल चार्ज पे उसमें प्रोड्यूस करते हैं, और जो अपना तलोद वाला प्लांट है उसमें 100% हाईग्लोस GVT प्रोडक्ट्स हम करते हैं। सो उसमें कि भाई ऑल ओवर इंडिया में आज की डेट में हमारे सब स्टेट में प्रेजेंस है और 2000 प्लस हमारे डीलर्स है, और इसके हिसाब से हम जो इस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किया। तो आज की डेट में हमारा 13 प्लस हमारा कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और इन हाउस हमारी टीम है कि जो एक्सपोर्ट में काम में लगी हुई है, और ऑल ओवर इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट को हैंडल करती है वो 80 प्लस की अपनी स्ट्रेंथ है। और अपना दोनों प्लांट का मिला के आप देखेंगे तो मेरा 480 प्लस लोगों का प्रोडक्शन और इन हाउस और ऑफिस स्टाफ की पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सारो का जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो 2008 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था। इनकॉर्पोरेट करने के बाद 2012 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया बड़ौदा में, और उसके बाद 2015-16 में हमने हिम्मतनगर में स्टार्ट किया। दोनों प्लांट का सेपरेटली अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है। उसका बेनिफिट भी ये है कि भी अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी सेम प्रोडक्ट होने से एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी एक प्लांट में निकालने से कॉस्टिंग के हिसाब से भी अपने को बेनिफिट ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट।
ये अपना जर्नी है कि भाई 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की, 2012 में हमने स्टार्ट किया, 2013 में उसको ऑपरेशन में लेके आए थे। उसके बाद जो बीच में जर्नी थी कि भाई हमने आर्किटेक्ट, मेसनमेट्स ये वगैरह सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए थे। 2015 में नया प्लांट स्टार्ट किया था हिम्मतनगर में, नियर बाय अहमदाबाद 80 किलोमीटर्स, एंड 17 में भी उसका लॉन्चिंग किया था, और 18 में समझ लो कि पूरा जो फ्लोरिंग सॉल्यूशन है वो पूरा बास्केट अपने पास रेडी हो गया था। उसमें 2000 प्लस अपने डीलर्स है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो उसमें एक में डबल चार्ज है, दूसरे में जीवीटी है, वो जीवीटी में भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अब ग्लोसी है हमारे पास, फिर मैट है, फुल बॉडी है, रॉकर है और बटर फिनिश है। तो उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। और जो साइज है, जो आज की डेट में इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो साइज चलती है 2x2 है और 2x4 है, वो उसमें हम बनाते हैं। और दूसरा जो स्लैब में जो ई मार्बल बोलते हैं, वो 800-1600 का साइज, वो भी हम उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने जैसे आपको बोला कि भाई जो डबल चार्ज है उसमें हम जो बड़ौदा वाला जो प्लांट है उसमें 800 मेजरली हम पूरा एक ही साइज में पूरा प्लांट चलाते हैं, जिसमें अपना कॉस्टिंग भी सेविंग होता है, अच्छा क्वालिटी इंप्रूव होता है और अच्छा प्रीमियम मटेरियल भी मिलता है। और जो ये है अपना जीवीटी का, जो जीवीटी का मैंने बोला कि वैसे कि भाई जो सरफेस बोलते हैं उसको, सरफेस में क्या होता है कि पूरा जो ग्लेस प्रोडक्ट है उसमें 600 और 600-1200 वो पूरा हमने सरफेस में उस काउंट किया है। और जो 816 जो बड़ा स्लैब है वो हमने ई मार्बल कैटेगरी में किया है। और जो अपना डबल चार्ज है उसको हम प्राइमा बोलते हैं। और अभी जो फ्यूचर अपना जो अर्थ स्टोन जो है, वो जो फ्यूचर में पार्किंग वाला जो प्रोडक्ट आएगा, उसके लिए हमने अर्थ स्टोन कैटेगरी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। नेक्स्ट, ये मैंने जैसे बोला कि जीवीटी में अभी जस्ट बोला कि भाई हम उसमें ग्लोसी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैट बनाते हैं, सुगर बनाते हैं, रॉकर फिनिश बनाते हैं, बटर बनाते हैं, फुल बॉडी बनाते हैं। वो उस हिसाब से जीवीटी में नंबर ऑफ फिनिश ज्यादा है और नंबर ऑफ डिजाइन 1000 प्लस है, कि जो जनरली वो जो एप्लीकेशन होता है वो फ्लोरिंग में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आज की डेट में एक ऐसा हुआ है कि आर्किटेक्ट भी जो रहता है, वो जो बड़े विलाज और बड़े फ्लैट, जो बड़े बाथरूम की साइज रहती है, बड़े किचन की साइज रहती है, उसमें वो लोग ये प्रोडक्ट वॉल में भी अभी एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट किया है। सो हम ये आज की डेट में हम बोलते हैं कि ये फ्लोरिंग ही पूरा सॉल्यूशन है, तो उसके साथ अब कुछ परसेंटेज ऐसा है कि वो वॉल में भी लगाना स्टार्ट हुआ है। जो डबल चार्ज है वो पूरा एक ही फिनिश होता है, वो ग्लोसी रहता है और वो फ्लोरिंग में ही लगता है। नेक्स्ट, ये अपनी जो बॉट की टीम है, किरीट भाई है कि जो ऑल ओवर इंडिया का मार्केटिंग वही देखते हैं, और दिनेश भाई है वो अपना उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो वो पूरा ऑपरेशन का कामकाज वही देखते हैं। नेक्स्ट, ये अपने जो अपने साथ जो जुड़ी हुई प्रोफेशनल टीम, वो उसकी है कि भाई जो हिमांशु शाह है वो सीएफओ है। लास्ट 14 साल का उनका लार्ज एक्सपीरियंस रहा है एशियन ग्रैंड टूर के अंदर, और लास्ट 2 साल से अपने साथ जुड़े हुए। दूसरे अपने पारस शाह है, जो वो अपना कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस का पूरा वो हैंडल करते हैं। और जो थर्ड वन है जो अजय कुमार पिन्नीमती, उनका लार्ज एक्सपीरियंस प्रोडक्शन साइड पे ज्यादा रहा है, तो वो पूरा ऑपरेशन दोनों प्लांट का वही देखते हैं। वो पहले आरके वगैरह में भी अच्छा उन्होंने काम किया है। 2012 से अपने साथ वो जुड़े हुए हैं। दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में देखेंगे तो कमल दवे और निधि गुप्ता वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और दक्षेश ठक्कर वो एलएलबी है, उनका 20-22 साल का एक्सपीरियंस है लीगल डिवीजन में, सो वो अपने साथ जुड़े हुए। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने बताया कि भाई यूनिट 1 ये पादरा का है, कि उसमें ऑलमोस्ट 37,000 स्क्वायर मीटर में अपना कंस्ट्रक्शन और पूरा प्लांट हुआ है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 36 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम, यानी कि 12,000 स्क्वायर मीटर पर डे के हिसाब से उसका कैपेसिटी है। और यूनिट 2 जो है अपना तलोद वाला प्लांट है, उसमें ऑलमोस्ट 35 एकड़ में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यानी 1,23,000 स्क्वायर मीटर, और ये अपना 29 to 30,000 स्क्वायर मीटर पर डे के हिसाब से उसका कैपेसिटी है। जो लास्ट ईयर जो कोविड के हिसाब से हम गिनते हैं तो ऑलमोस्ट 65 to 70% हमने उसको यूटिलाइजेशन किया था। नेक्स्ट, अभी जो हम बोल रहे हैं कि एक्सारो दूसरे से अलग क्यों है, तो जो जिस दिन 2012 में हम ये प्लांट इंस्टॉल कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि कौन सा मशीनरी लेके आएंगे, क्योंकि मोरबी जो मशीनरी ला रहा था वो नॉर्मल उसके हिसाब से वो सोच के ला रहे थे, करंट
सिचुएशन के हिसाब से सोच के रहा है। लेकिन हमारा विजन यही था कि लॉन्ग टर्म अपने को सर्वाइव करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी पूरा मशीनरी लेके आए थे। तो एडवांस में क्या था कि जिस मशीनरी की जिसकी मास्टरी है बनाने में वही लेके आते हैं। बाकी सारे लोग क्या करते थे, पूरा टंकी प्रोजेक्ट देते थे, सेक्मी को दे दिया या खेड़ा को दे दिया, तो उस हिसाब से काम करते थे। हमने क्या किया कि प्रेस की मास्टरी HLT की है चाइना की, तो हमने प्रेस वहां से लिया। सबसे ज्यादा जो फ्यूअल कॉस्टिंग के हिसाब से गिनते हैं तो वो किलन में सेक्मी की मास्टरी है, तो हमने सेक्मी से किलन लिया। डिजिटल प्रिंटिंग मशीन जो आता है वो सिस्टम का मास्टरी हमने वहीं से लिया है। और केडा का जो है वो पॉलिशिंग में मास्टरी है, तो हमने वहीं से लिया। यानी जिसका जो मास्टरी है वहीं से हमने वो प्रोडक्ट मशीनरी ली थी। कि जो दोनों प्लांट में बॉल मिल है तो वो भी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, आपने देखा 60 टन का कैपेसिटी वाला हमने वो इंस्टॉल किया हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी है। जो स्प्रे ड्रायर है वो हमने इन हाउस बनाया था, कि जो अपना जो तलोद वाला प्लांट है उसमें 1000 टन का पर डे का कैपेसिटी है, और जो अपना बड़ोड़ा वाला प्लांट है उसमें 650-700 टन के पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से हमने लगाया हुआ है। उसके बाद ड्रायर है, प्रेस है, पॉलिशिंग मशीन है। तो जो मशीनरी हमने जिस दिन लगाया था वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला था। दूसरा, जिस दिन हम किलन जो मेन पार्ट है टाइल्स इंडस्ट्री में, तो 2012 में हमने डबल चार्ज के लिए लगाया था, वो 216 मीटर का लगाया था। कि दूसरे लोग जो ला रहे थे उस दिन 130, 140 और 150 मीटर का किलन सब लगा रहे थे। वो करंट के हिसाब से बराबर था, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए वो छोटी किलन की साइज छोटी थी, तो हमने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला 216 मीटर का लगाया था। उसके बाद 2015-16 में आप देखेंगे तो मैंने जो तलोद में किलन लगाया वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो GVT के लिए जो है वो 243 मीटर का किलन लगाया, जो सबसे बड़ा था। और दूसरा किलन है 216 मीटर का। यानी तलोद में अपना 2 लाइन है और बड़ोड़ा में अपना सिंगल लाइन है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ फोटोज है कि भाई किलन है, कि भाई सेक्मी जो किलन है उसके फोटोज है। दूसरा है प्रेस की, जो अपना जो मैंने बताया कि HLT का प्रेस है 5600 टन के हिसाब से वो प्रेसिंग करता है। थर्ड वन है वो अपना केड़ा का पॉलिशिंग लाइन, नैनो मशीन है, जो इसमें फाइनली जो पॉलिश होता है नैनो मशीन जो केमिकल डाल के जो करते हैं वो है। उसके बाद QC मीटर है कि ये इसको प्लानोमीटर बोलते हैं, कि भाई ऑनलाइन जो ग्लेज लाइन पे जो टाइल्स फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद जाती है तो ये मशीन ऑनलाइन चेक करती है कि भाई रेक्टेंगल है, बैंड है या जो कुछ भी है, तो वो उसको मार्क करता है। उसके बाद भी अपने मैन पावर जो बैठे रहते हैं कि भाई वो सेकंड टाइम वो शॉर्टेज कर लेते हैं, उसके बाद में पैकिंग होती है। प्लीज नेक्स्ट। ये ओवरऑल सिरामिक क्लस्टर ऑफ इंडिया है, कि भाई सबसे ज्यादा जो आज की डेट में सिरामिक क्लस्टर आप देखेंगे तो गुजरात में है। गुजरात में मोरबी सिरामिक का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा क्लस्टर है। उसके बाद सम पार्ट ऑफ उत्तर गुजरात में आता है, कि भाई हिम्मतनगर और मेहसाना बेल्ट में है। बाकी सब ऑल ओवर इंडिया में स्मॉल पोर्शन में है, कि भाई आंध्र प्रदेश में है, हरियाणा पे है, तो उस हिसाब से स्मॉल पार्ट में दूसरी जगह पे यूनिट है। लेकिन आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा क्लस्टर मोरबी एंड उत्तर गुजरात, हिम्मतनगर और मेहसाना बेल्ट है। प्लीज नेक्स्ट। इसके आगे ये जो है पूरा मार्केटिंग का जियोग्राफिकल है, सो उसके बारे में किरीट भाई आपको थोड़ा गाइड करें। किरीट भाई प्लीज। Yeah, thank you so much. Thank you so much all team, brokers and analyst team. आप लोगों ने मतलब शॉर्ट टाइम में ये मतलब ज्वाइन किया हमारी कंपनी को, उसके लिए पूरी कंपनी की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। आई एम हैंडलिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया, एंड जो मार्केटिंग का जो कंपनी का जो मॉडल है वो 2012 में हमने स्टार्ट किया था। कंपनी जो अपना पादरा वाला है वहाँ पे 80/80 डबल चार्ज प्रोडक्ट बन रहा था। तो कंपनी का मेन विजन यही था कि अपने को प्रोफेशनली आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कंपनी ने सबसे पहला स्टेप कंपनी का ये था कि भाई इन हाउस अपने को क्या क्या डिपार्टमेंट खड़े करने पड़ेंगे। इसके लिए कंपनी ने सबसे पहले वहाँ पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, फिर अपना ब्रांडिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, वैसे करके HR डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। तो पूरे डिवीजन वहाँ पे हमने पहले सेटअप किया। आज की डेट में कंपनी ऑल ओवर इंडिया में इन हाउस एंड मतलब मार्केट में 120+ का सेल्स टीम है कंपनी के पास में, और इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2012 में जब ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया कंपनी ने, तब ये प्रोडक्ट इंडिया में कोई कंपनी नहीं बना रहा था। तो अपने को जो मेजर इसका वैल्यू मिला वो प्रीमियम डीलर्स ओपन करने में मिला, कि
वो टाइम पे पूरा मटेरियल चाइना से इंपोर्ट हो रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे डिमांड था कि वो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं था। इसके हिसाब से अपने को ऑल ओवर इंडिया में अच्छे और प्रीमियम काउंटर्स में अपना इनपुट हो गया कि वहां से अपने को सेल्स चालू हुआ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, आज की डेट में कंपनी के पास में 8 से 9 साल का जो जर्नी रहा है उसमें पूरे सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास में है। ISO सर्टिफिकेट्स है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, एंड महाराष्ट्र में अपने को MTDC मतलब माडा का सर्टिफिकेट्स है, PWD का सर्टिफिकेट्स है, GSRTC में कंपनी ने सर्टिफिकेट्स लिया हुआ है, गुजरात स्टेट मतलब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। कंपनी के पास में BIS का भी सर्टिफिकेट्स है, मींस उसको आप ISI भी बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट्स में अप्रूवल्स के लिए आपको कंपलसरी चाहिए। तो आज की डेट में कंपनी के पास में ऑल सर्टिफिकेट्स है कि अपने को जो भी डिपार्टमेंट में अपने को टाइल्स वहां पे सेल करना है तो वो लेवल के सभी सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास में है। नेक्स्ट प्लीज। कंपनी का जो मेजर जो स्ट्रेटेजी रहा है मतलब सेल्स करने के लिए, पहले हम लोगों का टोटल जो ऑल ओवर इंडिया में 2000 टच पॉइंट है, तो 2000 टच पॉइंट में हम डायरेक्ट डीलर्स आपको बोले तो टोटल 800 to 900 डायरेक्ट डीलर्स है कि जो बेस्ड एट पूरे साउथ में है, ईस्ट एंड नॉर्थ में डायरेक्ट डीलर्स है, एंड वेस्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि जहाँ पे एक सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, उनके नीचे पूरा डीलर नेटवर्क का टीम रहता है। तो वैसा टोटल मिला है तो टोटल अपना 2000 टच पॉइंट है। हम टायर 1 और टायर 2 सिटीज में काम कर रहे हैं। टायर 1 सिटीज में ऑलमोस्ट सभी जगह पे कंपनी का रीच है, एंड टायर 2 टायर 3 सिटीज में जहाँ पे नहीं है वहां पे कंपनी अभी आगे काम बढ़ा रही है। एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी टोटल मतलब 13 कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, और फ्यूचर में भी उसको हम आगे बढ़ाने का प्लानिंग ऑलरेडी लिया हुआ है। कंपनी के पास में एक्सपोर्ट का भी पूरा टीम अपॉइंट किया हुआ है कि जो फैक्ट्री लेवल से काम करता है। एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, मतलब अभी जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग 2 जगह पे यूनिट है, एक अपना पादरा में है एंड एक अपना तलोद में है। इसके बाद में हम लोग आगे भी हमारे पास में जो प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए नेक्स्ट हमारा कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्लानिंग है, वो फ्यूचर प्लान हम लोग आगे करते रहेंगे। कंपनी का जो डिजाइन में तो इन हाउस डिजाइन टीम है पूरा कंपनी का। भी आज के डेट में इटालियन मार्बल जो आता है उसका कोई भी रिप्लिका हमको बनाना है तो हमारे पास में पूरा स्कैनिंग मशीन है, वो मार्बल हम लोग स्कैन करते हैं और उसका डुप्लीकेट या रिप्लिका कॉपी हम लोग टाइल पे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में 7 डिस्प्ले हाउस है, एंड डीलर प्लेस पे गिनो तो 50 to 60 कंपनी शॉपीज है। ये जो मेजर सिटीज में है, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोचीन, बॉम्बे, भुवनेश्वर, सभी जगह पे जहाँ पे कंपनी का पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, तो वहां से इजीली आर्किटेक्ट्स, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर्स, वहां के लोकली डीलर्स वो प्रोडक्ट को देख के उसका प्लानिंग हमको आगे से दे सकते हैं, या उनको कोई भी सैंपल्स चाहिए या उनको आगे कोई बड़ी क्वांटिटी है, सपोज अभी हमारे पास में बड़े बड़े ग्रुप्स भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो वो भी वहां पे इजीली पूरे प्रोडक्ट देख के उनके आर्किटेक्ट के साथ में और वो पूरा प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है। नेक्स्ट। कंपनी ने 8 से 9 साल में काफी जगह पे लॉन्चिंग एंड एग्जीबिशंस एंड काफी कुछ किया हुआ है। राजस्थान में किया हुआ है, हमने कलकत्ता में किया हुआ है, बॉम्बे में एस्टेक एग्जीबिशन भी हमने किए हुए हैं। तो छोटे छोटे काफी जगह पे हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज चालू रहती है। तो कंपनी हर क्वार्टरली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हर जोन में करती है, तो उसके हिसाब से हमको ये अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिला हुआ है। नेक्स्ट। कंपनी का जो अभी का जो विजन है, टाइल इंडस्ट्री देखे तो टोटल बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। चाइना के सामने कोई जो इंडस्ट्रीज है तो एक सिरामिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है कि वो 2nd नंबर पे आती है। मतलब वर्ल्ड में हम लोग टाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पे। टोटल मतलब गिने तो 50,000 करोड़ का पूरा इंडस्ट्रीज है। इसमें लिस्टेड प्लेयर गिनो तो मतलब 4 to 5 पीपल्स ही है आज की डेट में। एंड जो कोविड का सिचुएशन था उसके बाद में सिरामिक इंडस्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है,
और आई थिंक इन फ्यूचर इंडिया की जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज है वो नंबर 1 पे भी जा सकती है, लेकिन आज की डेट में 2nd नंबर पे है हम लोग। और वर्ल्ड वाइज इसका जो पोटेंशियलिटी है टाइल्स की वो बहुत बड़े लेवल पे है। आज की डेट में टाइल एक नॉर्मल आइटम, नॉर्मल चीज हो गई है कि किसी को भी छोटा या बड़ा कोई भी मकान बनाना हो या फ्लैट या कुछ भी, तो टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिरेमिक इंडस्ट्रीज फ्यूचर तो हमको बहुत ब्राइट दिख रहा है। और आज की डेट में इंडिया में भी डोमेस्टिकली या नरेंद्र मोदी साहब ने जो जो मतलब प्लानिंग किया हुआ है, हाउसिंग फॉर ऑल, एंड गवर्नमेंट में भी बहुत बड़े लेवल पे मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंजप्शन तो बहुत मतलब आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। नेक्स्ट, ओवरऑल जो कंपनी का जो विजन है, मार्केटिंग का जो मॉडल है, वो हमारे पास में अभी एक फ्लोरिंग सॉल्यूशन में 2 प्लांट है। दोनों प्लांट अभी 95% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। फ्यूचर में कंपनी का प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग जो जो प्रोडक्ट कंपनी के पास में नहीं है वो हम लोग एड ऑन करते जाएंगे। हमको प्रोफेशनल टीम्स भी जहाँ पे अपॉइंट करना पड़े, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में, वो हम लोग करेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट या जो भी हाउसिंग फॉर ऑल या जहाँ पे भी हम लोग प्लान कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट को रीच करवाने के लिए, वो हम हमारा पूरा टीम या हमारा कंपनी का पूरा मैनेजमेंट है वो इसके पीछे पूरी मतलब लगे हुए हैं कि इसको हम मैक्सिमम रीच करवा पाए। वो थैंक यू सो मच ऑल टीम, एंड मैं अभी हैंड ओवर हिमांशु भाई को करूंगा। Yes, good afternoon to all. Thanks to everybody for giving us opportunity to present in front of you. Next slide. टोटल हमारा रेवेन्यू सेगमेंटेशन है, जियोग्राफिकल एंड एक्सपोर्ट, जो हमारा अभी ओवरऑल 35 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एब्सोल्यूट नंबर है हमारे एक्सपोर्ट टर्नओवर रहा, जो हमारे टॉप लाइन के ऑलमोस्ट 14% है। और रिमेनिंग 86% का जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में रेवेन्यू सेगमेंटेशन है। सो मोस्टली वेस्ट और साउथ में हमारा 75% है और नॉर्थ एंड ईस्ट में हमारा 25% है। सो दिस इज आवर ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन। और आप देखोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स से जो है वो FY18 में 233 से लेके 200 हमने FY21 में लास्ट 255-259 करोड़ किया है। आप सब जानते हो कि फर्स्ट क्वार्टर में वैसे लास्ट ईयर में कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं रहा, तो वो हिसाब से ये जो नंबर है वो हमारा सिर्फ 9 मंथ्स का जो एक्टिविटी है वही है। और एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो हमने ग्रेजुअली वैसे देखे जाओ तो हमारा जो कैगार है वो अबव 60% है एक्सपोर्ट रेवेन्यू में FY18 से FY21 तक, और 51 करोड़ से लेके 5 करोड़ से लेके आज हम 35 करोड़ के एक्सपोर्ट के हैं और 13+ कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रेजेंस है। नेक्स्ट, ये टोटल हमारा जो रेवेन्यू है 259 करोड़ हमने लास्ट ईयर हमने किया। और जैसे मैंने आपको बताया देयर इज ऑलमोस्ट 9 मंथ्स फिगर बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट लॉकडाउन, जिससे कोई भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं हुआ था। और हमारी जो एवरेज है आप FY18 से लेके FY21 देखो तो क्या अगर हम अबाउट 20% के ऊपर हमारा रन रेट चल रहा है। और इबिटा मार्जिन जो है वो हमारा लास्ट ईयर 47 करोड़ एब्सोल्यूट नंबर में, जो टॉप लाइन के 18.6% का हमारा इबिटा मार्जिन है। आप देखोगे FY18 से FY21 तक वी आर कंसिस्टेंट इन मेंटेनिंग और रादर आई वुड से इन कंट्रीब्यूटिंग द इबिटा मार्जिन से अराउंड 18% to 19% के हमारे रेंज में है। और हमारी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से लेके आज 136 करोड़ का हमने नेटवर्थ हासिल किया हुआ है। लॉन्ग टर्म जो डेट है कंपनी का 106 करोड़ का जो था FY18 में, बिकॉज वी आर इनिशियली सेटअप द प्लांट इन द ईयर 2015, जो GVT का हमने जो कैपेक्स किया था, वहां से लेके कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट रिमेंड है एकदम स्टैंडर्ड और रेगुलर बेस पे हम कंटिन्यूस उसको डिक्रीज कर रहे हैं। और FY21 में आप देखो तो वी वर एट 69 करोड़। नेक्स्ट, ये हमारा टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो ब्रेकअप है, जैसे मैंने बताया कि हमारा टोटल आप डेट की पोजीशन देखोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, आज की तारीख में हमारा 135 करोड़ का टोटल डेट है, जिसमें वर्किंग कैपिटल है वो 75 CR का है और 18 से 21 का ये और सब ऑडिटेड फिगर्स है। नेक्स्ट,
There is a overall on the P&L sides FY21 में जो मैंने 255 crore का हमारा जो टर्न ओवर है वो 9 months का एक्चुअली ये फिगर है जिस हिसाब से मैंने बताया. EBITDA is 47 which is at 18.6% and PAT level is 15.22 crore का है जो ऑलमोस्ट 6% के करीबन है. लास्ट आप देखोगे FY18 से 21 तक का तो we are consistent in EBITDA margins as you can see and PAT level is also in the range of 5% to 6% में है. और ये जो हमारा ROC है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 11.88% रहा FY21 में which was at FY18 9.87. So there is a substantial increase in the return on net worth position में gradually हमने improvement किया हुआ है. Next. Peer analysis comparison में एक्सारो का हमने कजारिया, एसेनाइटो जो सब listed players है, leading players है, सुमानी, ओरियन बेयर और मुदुस में. These all are the listed player. उसके साथ हमारी comparison दिखाई हुई है जो income अभी 259 करोड़ था. कजारिया is almost at 2800 करोड़ जो है उसका और बाकी का जो रिमेनिंग सबका जो फिगर है वो अबव 1000 करोड़ के अंदर है उसके ऊपर है. बेसिक ईपीएस हमारा 4.5 है जो पर अर्निंग पर शेयर्स जो है वो FY21 के नंबर पर है और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हमारा जो है वो 10 रुपीज पर शेयर है. बुक वैल्यू पर शेयर जो आ रही है वो नंबर के हिसाब से अभी 38 रुपीज हमारा आ रही है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 11.88% है. नेक्स्ट. So basically, these IPOs, as Mahavirji has earlier said, we are opening on 4th and closing on 6th August and targeting of 160 crores, out of which new equity shares of 135 CR, which we are targeting to repay our existing long-term debt of 50 CR and remaining for 45 crores for the working capital requirement and remaining for general corporate purpose for our future growth requirements. QIB portions जो हमने रखा है 25%. Non-institutional portion is 35 and retail portion is 40%. Next. Thank you. Thank you to all. Sanjay Endo. Yeah, thank you, sirs, for this wonderful presentation. Thank you for taking us through this presentation. One of the major factors that drives demand for ceramic tiles is growth in the construction sector on both the domestic and global front. Growing disposable incomes and a growing population constitute prime factors for the increase in demand of construction activity, which drives the market for ceramic tiles as well. We hope the attendees have captured enough and more understanding of Exaro Tiles, its business model, financial and its execution capabilities, and opportunities that lie at hand. Before the floor is open for participants to ask their questions, I would like to reiterate to type your name and organization details in the Q&A chat box for the moderator to take note and address your query. Please note that in the interest of time, we'll be restricting to 10 to 15 questions only, and repetitive questions will be skipped. We'll just wait a moment for the attendees to put across their queries, and then we'll start with the Q&A session as well. नहीं सर, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते आज के डेट में. Okay, noted. Thank you, sirs. And there's another question which says, are you dependent on external source for designs or do you all have an in-house design facility? नहीं सर, डिजाइन का पूरा अपना इन हाउस टीम है डेवलपमेंट के लिए. जैसा किड मैंने बताया कि भाई जो टीम है अपने पास पूरा फैसिलिटी है कि भाई कोई डिजाइन डेवलप करना है, कोई इटालियन मार्बल का लुक लेना है या फॉर एग्जांपल कोई बड़ा प्रोजेक्ट से टाटा हाउसिंग से तो उसको 5 साल के लिए चाहिए तो वो कोई स्पेशली उनका कोई डिमांड रहता है तो वो हम इन हाउस पूरा टीम है तो पूरा वो डेवलप करके अपने वो मैच करके देगी. यानी अपना कोई आउटसोर्स वाला नहीं है, वो पूरा इन हाउस टीम है. Noted, sir. Thank you.
Are you sourcing raw material and glazes locally or imported, or are they imported? नहीं सर, जो ग्लेज जो हम इन हाउस जो बनाते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो लोकल ही रहता है, मेजरली राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। बाकी जो उसका जो मिक्सिंग वगैरह का जो R&D टीम्स है वो अपना इन हाउस है, तो हम इन हाउस ग्लेज बनाते हैं। Noted, sir. Can you please reiterate on the percentage of exports? एक्सपोर्ट सर, हमारा जो लास्ट ईयर का जो हमारा टोटल टर्नओवर रहा 255 सीआर में, इसमें 35 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट रहा था लास्ट ईयर में, सो विच इज ऑलमोस्ट 14% ऑफ आवर टॉप लाइन। And there's another question which says, when we compare with peers, there is some scope to improve the EBITDA and PAT margins. What is the strategy going forward to improve these margins? Could you please highlight that? सर देखो, तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉडल है सर, आप देखोगे, सो वी आर मेनली इन दिस ओन मैन्युफैक्चरिंग ओनली एंड विट्रीफाइड फ्लोर सेगमेंट्स। हमारी जो 2 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसमें से हम हमारा जो भी टोटल बिजनेस ऑपरेशन है उससे चल रहा है। तो ये सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो EBITDA कंसिस्टेंट मार्जिन है हमारे, उसके पीछे यही स्ट्रेंथ है कि हम हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग से ही हम उसको जो है वो मार्केट में हम उसको डिलीवर करते हैं। और आगे जाके भी हमारा जो ये कंसिस्टेंसी रखनी है EBITDA मार्जिन में, तो जैसे जैसे हमारा टॉप लाइन का जैसे ग्रोथ रहता रहेगा, इसमें भी हमारा ज्यादातर जो है वो ओन मैन्युफैक्चरिंग से हम करेंगे। सो वी आर टारगेटिंग इन फ्यूचर ऑल्सो कि हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग वो ऑलमोस्ट 75 to 80% हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग रहे, और रिमेनिंग जो है वो हम आउटसोर्स से ऐड करेंगे। आउटसोर्स इतना ही करना है कि जितना हमारे पास ऑर्डर्स ज्यादा है और उसके पास हमारे नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, उसी को हम आउटसोर्स को लेके मार्केट को लूज नहीं करेंगे, वही कंसेप्ट से हम आउटसोर्स करेंगे, क्योंकि हम उसको ग्रोथ के साथ EBITDA मार्जिन भी मेंटेन करना चाहते हैं। और आप देखोगे कि पीयर के साथ हमारा जो नंबर हमने देखा, सो सिंस लास्ट 5 इयर्स हम भी वही रेंज में 17% से 19% के EBITDA मार्जिन हमने मेंटेन करके रखा है। सो वी विल फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी इन द कमिंग इयर्स आल्सो। I think जो peer का comparison, the question is basically that there is room for improvement compared to peer profit. So Syed, I think there's some confusion in the question, because I think the question probably is that how Exaro is probably much higher than most of the peers, because I think 18 to 20% margin, I think after Kazaria probably, at least in listed space, as per the disclosed figures, probably Exaro is the second highest in terms of EBITDA margin, and they have been consistent margins across last 7-8 years. And that of course translates to probably post-tax profitability also. So bottom line, I think, has been on and that is possible only because of the integrated model as briefed by the company management. Thank you, Mr. Shah, and thank you, Mr. Ranawat, for the detailed clarification. The next question is, are there any capex plans in the current financial year or in the upcoming 2 to 3 years? सर, इस साल में तो अभी FY22 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारा कोई कैपेक्स प्लान नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसी से में ही हम हमारा पूरा यूटिलाइज करके हम उसमें से करेंगे। और आने वाले समय में जो हम विट्रीफाइड फ्लोर सेगमेंट्स में ही है, तो वी आर ऑल्सो टारगेटिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन आवर बास्केट ऑल्सो, सो दैट हम मार्केट्स में जो हमारा 2000+ टच पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से हम उसको कैपिटलाइज कर सके। तो उसके लिए हम सिरामिक जो प्रोडक्ट है वॉल टाइल्स की और आउटडोर टाइल्स और पार्किंग टाइल्स है, उसके लिए हम नया जो प्लांट का कैपेक्स का हमारा जो प्लानिंग है, तो मोरबी जो क्लस्टर है उसमें हमने एक प्लांट उसके लिए सेटअप कराने का हमने प्रोविजन रखा है। और वो जो प्लांट है उसका जो कैपेक्स है वो हम हमारे इंटरनल कैश एक्रूल से ही करेंगे। बाय FY23 दिस न्यू प्लांट सेटअप विल कम अप विद द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और वो हिसाब से हमारा सिरामिक वॉल टाइल्स का सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट है हम हमारी प्रोडक्ट बास्केट में उसको ऐड करके हम मार्केट में उसको हमारे विट्रीफाइड फ्लोर सेगमेंट के साथ उसको बेचेंगे।
सर उसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि भाई जो अपना एक्सारो का जो मॉडल है मार्केटिंग के हिसाब से और ऑन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, तो आज की डेट में मेजरली फ्लोरिंग सॉल्यूशन है, बाकी जो प्रोडक्ट नहीं है वो ऐड करेंगे। सो वन बाय वन अपने को जो कैपेक्स करना पड़ेगा वो जैसे साहब ने बोला, तो अपना FY23 के बाद हम उसमें एक एक प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कुछ कैपेक्स करते रहेंगे। Noted, sir. Thank you. The next question is, where do you see more growth, in domestic or in exports? सर ग्रोथ दोनों पार्ट में है, डोमेस्टिक में भी है और एक्सपोर्ट में भी है, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद आप देखिए तो एंटी चाइनीज मूवमेंट की वजह से बहुत सारी कंट्री ओपन हुई है। जैसे भी आज के डेट में एक्सारो का 13 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें मेजरली आप देखिए मेरी क्वालिटी के हिसाब से मैं यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा मैं एक्सपोर्ट करता हूं। उसके बाद आज की डेट में US ओपन हो गया है, दूसरी भी कंट्रियां ओपन हुई है, तो हमारा कामकाज वहीं भी चालू है। तो एक्सपोर्ट भी उतना ही बढ़ने वाला है जितना डोमेस्टिक। लेकिन एक्सारो का जो मॉडल है और जो एबिटा मार्जिन और जो पैट मार्जिन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो डोमेस्टिक और वो रिटेल सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस है। सो आप एवरेज ये पकड़ सकते हैं कि मैक्सिमम में एक्सपोर्ट हमारा 20% हम काउंट करके चल रहे हैं, बाकी का डोमेस्टिक में हम हमारा फोकस ज्यादा है सर। Noted, sir. Thank you. The next question is, are you going to expand your production lines? Are you looking to do that? प्रोडक्शन लाइन की जो बात करें, अभी जस्ट हमारा बात हुआ कि भाई आज की डेट में जो मेरे पास 2 यूनिट है तलोद और जो अपना बड़ौदा में, वो ये साल के लिए तो अपना पूरा फुल कैपेसिटी पे आज की डेट में चल रहा है, उस हिसाब से रन रेट से चल रहा है। सो ये साल में ये प्रोडक्ट के लिए हम नई कोई लाइन नहीं डालेंगे, लेकिन जो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्लानिंग है कि जो अपने बास्केट में जो प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए हम कैपेक्स करेंगे। और दूसरा अपना जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं डबल चार्ज और GVT, सो वो कोई फॉर एग्जांपल बल्क सेल के लिए अपने को मटेरियल चाहिए, तो वो हम उसका थोड़ा कहीं बाहर से लेके वो हम फुलफिल करेंगे। बाकी अपना ओन सोर्सिंग प्रोडक्शन का जो मॉडल है उस हिसाब से ही हम काउंट करके चल रहे हैं। Next question is, are there any plans to appoint brand ambassadors? आज की डेट में जो एक्सारो का मार्केटिंग में हम लोग जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू के हिसाब से 2.5 to 3% कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में जैसे भी रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब रूरल 1, 2 and 3 सिटीज में हम लोग मास मार्केटिंग लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर का भी प्लानिंग सोच रहे हैं, तो इसको जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं। The next question is, what could be the marketing and brand promotion expenses at the peak? जैसे मैंने बोला कि अभी रेवेन्यू के हिसाब से हम लोग 2 से 2.5% का अभी एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है, जैसे ही टर्नओवर या रेवेन्यू में आगे हम बढ़ेंगे तो उस हिसाब से ये एक्सपेंस और भी इनिशियली बढ़ेगा, बाद में इसको सस्टेन मतलब करेंगे। Noted, sir. Thank you. Just a gentle reminder to participants to please ask your questions in the Q&A chat box, and we will take those questions from there and address your queries, if any. We'll wait for about a minute for more questions from the participants and attendees. तो मे भी किरीट भाई, मीनवाइल आप बता सकते हैं मार्केटिंग में, जैसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं है बट बाकी जो इनिशिएटिव्स है जैसे IPL है या और जैसे अपने एग्जीबिशन। राइट। अभी जो मार्केटिंग में हम लोगों का जो मेन विजन था कि भाई सभी सिटीज में एक तो कंपनी की अपनी ऑफिस शॉपी सिस्टम हमने प्लान किए हैं कि जो मतलब डेडिकेटेड एक्सारो के शॉपी हो सभी सिटीज में, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं डीलर के साथ मिलके। एंड अभी IPL जो हुआ था इसमें कंपनी ने स्पॉन्सरशिप किया हुआ था कि एंड दूसरा हम लोगों का जितने भी बड़े एग्जीबिशंस है, एस्टेक एग्जीबिशन में हमारा वर्किंग अच्छे से चल रहा है। दूसरे छोटे छोटे जितने भी एग्जीबिशंस है वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एंड फ्यूचर में जो ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई तो ऑलरेडी उसका वर्किंग हमारा चल रहा है, तो शॉर्टली हम लोग उसको भी प्लान कर रहे हैं।
Noted, sir. Thank you. Thank you for that. The next question is, will the tile industry see overcapacity 2 to 3 years down the line, considering that most of the players are expanding their capacity? सर इसमें आपको बताऊं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी मोरबी में आप देखोगे तो कोविड के सिचुएशन पहले डिफरेंट सिनेरियो था और आज की तारीख में डिफरेंट सिनेरियो है। जैसे आप देखोगे लास्ट 2 to 3 years में देयर वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन दिस इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस। से फॉर एग्जांपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग्स दिस monetizations was there, then GST implementation initially at 28% and then after 18%, e-invoicing, e-way bills, RERA and NGT order finally came and gasifier units were closed down almost, and they all compulsory being converted into the gas lines. These all factors was a very constraint for the ceramic industries to grow, and particularly in organized players in the Morbi. And because of these all consequences, majority of the players were shut down at that time before 2 years. This was the situations. After this lockdown and this COVID, anti-China movements के हिसाब से ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी बढ़ गई और चाइना का प्लेस इंडिया ने लिया है। And India is now globally as the second largest in terms of the manufacturing capacity. And as far as the consumption is concerned, is the third largest in India is the globally. So looking to this trend and positively in this globally market demand is upgraded. So USA and other countries is also open up, and Morbi is now as a cluster unorganized player is more trying to catch up the market in the international level. उसके कारण आप लास्ट ईयर में देखो तो 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट दा फिगर विच वाज एट 15 to 18% ग्रोथ रन रेट से उसका इंक्रीज हुआ है। सो उसका एक अच्छा इफेक्ट ये हुआ है कि डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉजिटिव डिमांड ओपन हो गई और वो डिमांड सप्लाई का जो जितना गैप था वो फुलफिल हो गया और ऑर्गेनाइज मार्केट just like Exaro is a brand has catch up this opportunity in capturing the unorganized market. लेकिन जब कैपेसिटी की बात है तो सर ये जो सिचुएशन है वो आने वाले समय में यही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा पूरा कॉन्फिडेंट है। और इंडिया इज ऑल्सो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया हुआ है। चाइना का मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव लेविड द एंटी डंपिंग ड्यूटी अगेंस्ट चाइना, सो इंडिया इज मोर फेवर्ड कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के कारण आज की तारीख में मोरबी के अंदर मोर देन 70 to 18 न्यू प्लांट्स आर कमिंग इन द जीवीटी सेगमेंट्स। तो वो लोग सबका एक ही टारगेट है जो एक्सपोर्ट के लिए डिमांड जो है वो डिमांड को उसको मिट आउट करना है। और बाकी सेक्टर्स में वो मोमेंटम से देखते हैं तो फिलहाल ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा है कि ये कैपेसिटी आने वाले 2-3 साल में यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब करेगा या सिरामिक इंडस्ट्री को उसके लिए कोई थ्रेट रहेगा। So we don't see any such any negative things in this.